Rahul Gandhi is in Hyderabad today. Rahul and responsibility, these two R's never go together. Rahul can hardly be responsible. And today, he has yet again proved the same. We are all very disturbed and sad about Rohit Vemula's suicide. But the way insensitivity has been shown by Mr. Rahul Gandhi is the reason as to why I say Rahul and responsibility cannot travel together. In fact, the ministry has ordered a judicial inquiry into Rohit's death. We are also aware of the fact that the whole thing is in front of the High Court. So naturally, when a judicial process is on, why should Mr. Rahul Gandhi try to act as a judge? He should have been extremely responsible because he is leader of one of the most important political parties of the country. This is an extremely sensitive issue, and Mr. Rahul Gandhi, rather than politicizing this, should have shown restraint and sensitivity. As has been told by the minister also, this is not a Dalit versus non-Dalit issue, and we should not try to stoke passion in a wrong way. It's a classic case of, I'm very sad to state, that it's a classic case of trying to buy some political brownie points out of a tragedy. And this is tragic in itself. What kind of politics we are up to? A politics from where we try to buy some political brownie points out of death, out of suicide. Is this the rightful way? Is this the sensitive way? Absolutely no. Mr. Rahul Gandhi should stop politicizing death. He should stop working in a positive way rather than playing politics over dead bodies. Rahul's characteristic way of functioning is sunning his own responsibility and trying to gate crash into others' protest. He always has shunned his own responsibility and has always trying to usher up others' protest. We have seen this in umpteen number of occasions in the past as well. As far as own responsibility is concerned, let me remind you of the near past as to where Mr. Rahul Gandhi should have reacted and did not, where he shunned his responsibility. Warangal. In the same state, Warangal, where in fact in November 2015, only a few months from today, the by-elections were to be held. And the Congress candidate, who was a former member of Parliament of Congress and who was given a ticket to contest the election from Warangal, Mr. Ajaya, in fact, it was shocking and disgusting. He burnt his daughter-in-law, who was a Dalit, and three children who were Dalit, alive. 4 people were burnt alive by Mr. Ajaya, who was a former member of Parliament of Congress, who was given ticket to contest the by-poll election in Warangal by the Congress. Did Mr. Rahul Gandhi go there? Did Mr. Rahul Gandhi open up his mouth to speak against this? Did Mr. Rahul Gandhi ask for an order for a judicial inquiry? Did Mr. Rahul Gandhi shed a drop of tear for those 4 people who died? For the 4 Dalits who were burnt alive? No, he did not. He has never done that. He has been very selective in his approach. Warangal was one. Malda. Malda has become a hotbed of discussion as far as national security and compromise of national security is concerned. Malda has become a place where counterfeit currency, opium, gang war has become the talk of the town. Channels after channels, in fact, have gone to Malda to expose what the truth of Malda is. Today, in fact, Malda is being talked about across the length and breadth of country. Has Mr. Rahul Gandhi ever visited Malda? No. He will never visit Malda because he has to be selective in his approach. Bihar, Mahagathbandhan. You are a part of a government in Bihar. You have your member of Legislative Assembly in the government in Bihar. What's happening in Bihar? Extortion, abduction, molestation, murder.
This is what is happening in Bihar. Every day there is a murder. Every day there is an abduction. Every day there is a call for extortion. We have seen as to how MLAs from the ruling parties have abducted women. We have seen as to how the MLAs of the ruling party have gone to the trains and have molested families and women. Has Mr. Rahul Gandhi spoken? No, he will not speak because he's not supposed to speak. He's supposed to be selective. He shuns his own responsibility and he great crashes into all others' protest, trying to usurp their protest, trying to make their cause his own cause. And let me remind you, friends, we have all seen in the past that in no single incident Mr. Rahul Gandhi has taken anything to a logical conclusion. Kalavati, we all remember the poor lady Kalavati. Did Mr. Rahul Gandhi's visit to Kalavati's home help Kalavati in any way? No. The photo opportunity of Mr. Rahul Gandhi to Kalavati's home only has left Kalavati in despair and disgust. And these are the words of Kalavati, I don't say so. Shunning one's responsibility and picking up others' cause, great crashing into them, trying to politicize every issue is a trademark of a person who does not want to shoulder responsibilities. जो कंधे पर जिम्मेदारी उठाना नहीं जानते हैं, वे दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, और ये राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि उनके कंधे पर आज उतना दम नहीं है कि वो उस कंधे पर हिंदुस्तान के भार के विषय में सोच सके, उसे आगे बढ़ाने की चिंता कर सके। वो हमेशा दूसरों के कंधे ढूंढते हैं और उस पे गलत तरीके से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। Mr. Rahul Gandhi's way of functioning is episodic and late. It is always a late approach. It's always episodic. I'll give you an example. January 1st, we had seen as to how Pathankot took place. When our brave Jawans laid down their lives, Rahul Gandhi was in Europe enjoying his vacation on the occasion of New Year. After 10 days, he arrives in India and he sheds crocodile tears. He criticizes the government. He criticizes the system. After 10 days, he was in Europe celebrating New Year when Pathankot was taking place. And today, after 10 years, Mr. Rahul Gandhi wakes up in Hyderabad University. This is the same Hyderabad University where 9 Dalit students have killed themselves in the last 10 years. In the last 10 years, 9 Dalit students have killed themselves, and they have clearly mentioned previously in 2013, in 2008, remember, as to how system needs to change. My question to Mr. Rahul Gandhi is, did you ever wake up in this last 10 years? Did you ever visit the Hyderabad University campus in these last 10 years? Did you ever visit any of these 9 students' parents in this last 10 years? They were also Dalit, Rahul sir. Mr. Gandhi, वो भी दलित थे. आपके दलित और हमारे दलित ये ठीक नहीं है. परेशानी होती है. वो हमारे समय में गए थे तो हम नहीं जाएंगे. ये इनके समय में गए हैं तो हम जाएंगे. ये इनका और उनके का फर्क ये उचित नहीं है. Politics of opportunism. That's what Rahul Gandhi is. He always looks for an opportunity to crawl into the cause and tries to make the cause his own. Mr. Rahul Gandhi, let me categorically put this, as far as the Congress is concerned, disruption in the parliament and disturbance in the society is the guiding line of your party. I repeat, disruption in the parliament and disturbance in the society is the guiding light of the Congress party after the debacle in the 2014 election. This is not the right way, sir. Please mend your ways. Don't politicize death. And Mr. Gandhi, at the end, I would say, don't start up your political career only to further your own cause. If you want to start up your political career, which is not taking off till now,
Start that up in a positive way, never in a wrong and a negative way. I've always said, and I repeat yet again, be sensitive. We know that you also are a startup. We know your political career is not taking off. If your political career is not taking off, it is better to exit, because you have got bankrupt with ideas. It's always better to exit than to ignite passions in wrongful way. मैं हिंदी में 2 मिनट कहूंगा. हिंदी में ज्यादा कहूंगा. फिर ये बड़ा दुखद विषय है. जिस प्रकार मौत के ऊपर राजनीति करने की कोशिश राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है. राहुल जी और जिम्मेदारी, ये दोनों कभी साथ साथ नहीं चल सकते हैं. और ये वक्त ने बताया है, ये वक्त का तकाजा है कि राहुल और जिम्मेदारी ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं. राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये साथ नहीं चल सकते हैं. ये इतना संवेदनशील मामला है. रोहित वेमुला हमारे बीच नहीं रहे. हम सब ने दुख व्यक्त किया. ये दुख की घड़ी है. हम सब इस विषय को लेकर पीड़ित हैं. मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस विषय के संवेदनशीलता को देखते हुए हम इस पर कोरी राजनीति, खराब राजनीति ना करें. विमर्श जरूर करें, सुधार कैसे हो इस पे विमर्श हो, मगर राजनीति नहीं हो. इस पे जिस प्रकार से समाज को बांटने का प्रयास राहुल गांधी, कांग्रेस और कुछ अन्य राजनेताओं का रहा है, दलित वर्सेस नॉन दलित बनाने का, यह अनुचित है. समरसता ही हमारा मुख्य आधार है. सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय के साथ कैसे हम आगे बढ़े, यही हमारे पार्टी का, हमारे सरकार का एकमात्र ध्येय है. यही हमारा ध्येय है. आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं. जब एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, एक न्यायिक जांच बैठाई गई है, जब यह पूरा मामला हाईकोर्ट के सामने है, क्या राहुल जी को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है? आप इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों अपना रहे हैं? यह सवाल हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं. केवल इसलिए ताकि आप अपने पॉलिटिकल कैरियर को थोड़ा आगे बढ़ा सकें. बस केवल इसलिए आप समरसता को दांव पे लगा रहे हैं. इसलिए आप इसे दलित वर्सेस नॉन दलित बना रहे हैं. एक मृत्यु के ऊपर, एक दुखद खुदकुशी के ऊपर, एक छात्र के मृत्युशैया पर राजनीति करने की कोशिश, यह बड़े नेताओं को रास नहीं देता है. आप अपने आप को कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं. आप अपने आप को देश का बड़ा नेता बताते हैं. ये बड़े नेताओं का चरित्र नहीं है. बड़े नेताओं का चरित्र होता है देश को मिला के चलना. बड़े नेताओं का चरित्र देश को बांट के बढ़ना कभी नहीं होता है. बड़े नेताओं का चरित्र होता है विमर्श करना. बड़े नेताओं का चरित्र केवल वोट के लिए हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करना, यह बड़े नेताओं का चरित्र नहीं होता है. बड़े बनने की कोशिश करिए. आपकी कोशिशें आपको छोटी बना रही है. राहुल गांधी जी के काम करने का तरीका विचित्र रहा है और विगत अनेकों वर्षों से हम उनके काम करने के तरीके को देख रहे हैं. अपने जिम्मेदारी से भागना और दूसरे के प्रोटेस्ट को, दूसरों के कारण को अपने कारण बनाकर उसमें से राजनीति करने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी के काम करने का तरीके का हिस्सा बन चुका है. अपने जिम्मेदारी से भागना कैसे? मैं उदाहरण देता हूं. 3 उदाहरण हाल फिलहाल के समय का दूंगा. यह वही राज्य है जहां वारंगल में कांग्रेस पार्टी ने नवंबर 2015 में राजैया नामक अपने ही एक पूर्व सांसद को टिकट दिया बाईपोल में लड़ने के लिए. राजैया जी ने अपने दलित बहू और अपने 3 पोतों को, पोते पोतियों को जो दलित थे, 4 दलितों को जिंदा जला दिया, जीवित जला दिया. एक महिला दलित को जीवित जलाया. एक बार राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आए? एक बार राहुल गांधी राजैया जी के घर गए? एक बार राहुल गांधी उनकी बहू के घर गए? एक बार राहुल गांधी उनके देवड़ी पर जाकर बैठे कि मैं आपके साथ हूं, हमारे पार्टी के व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया, मैं क्षमा मांगता हूं? नहीं, एक बार भी नहीं गए. एक बार भी राहुल गांधी ने कहा कि यह उचित नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कहा. क्योंकि
उनको सिलेक्टिव रहना है, सब विषयों पे नहीं बोलना है ना। मालदा छोटी चीज नहीं है। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स अब मालदा में पहुंचे हैं। मालदा की हकीकत अब पूरे विश्व के सामने आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सामने मालदा का हकीकत आ रहा है। नकली नोट, अफीम, गैंग वॉर, किस प्रकार से मालदा में नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को तार तार किया जा रहा है, यह हम सबके सामने में है। राहुल गांधी अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, क्या राष्ट्र सुरक्षा बड़े नेताओं का विषय नहीं है? क्या राष्ट्र सुरक्षा के विषय में बातचीत नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है राहुल गांधी जी, ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो आपको एक्सपोज कर रही है। बिहार महागठबंधन की सरकार है, बिहार में आप सरकार में हैं, बिहार में आपके विधायक समर्थन दे रहे हैं सरकार को, आपकी सरकार है बिहार में। प्रत्येक दिन रंगदारी, प्रत्येक दिन हत्या, प्रत्येक दिन किडनैपिंग, अगवा कर लेना, ये हर दिन हो रहा है। एक दिन बिहार गए राहुल गांधी, एक दिन उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही है? एक हत्या ठीक है, इसके नहीं कहूंगा, दूसरे मौत पे मैं कहूंगा ये सिलेक्टिविज्म ठीक नहीं है। हमेशा अपनी जिम्मेदारी से राहुल गांधी दूर भागने का प्रयत्न करते रहे हैं। एपिसोडिक और लेट अप्रोच, हमेशा राहुल गांधी जी के काम करने का तरीका वो देरी से ही जगते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, पठानकोट हुआ, पूरा देश पठानकोट में एकजुट होकर खड़ा हो गया, हमारे जवानों के साथ हम खड़े हो गए। राहुल गांधी यूरोप में छुट्टी मना रहे थे, नववर्ष के उपलक्ष्य पर वो छुट्टी मनाने यूरोप में थे। 10 दिन बाद वापस आते हैं और 10 दिन बाद घड़ियाली आंसू बहाकर सभी के खिलाफ कहने लगते हैं पठानकोट को लेकर। आज इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां से रोहित वेमुला आज हमारे बीच नहीं है, इसी कैंपस में विगत 10 वर्षों में 9 दलित छात्रों ने सुसाइड किया। क्या एक बार राहुल जी, जब आपकी यूपीए की सरकार थी, आप वहां गए? आपने कभी उनके माताओं से मिलने की कोशिश की? आपने उनके परिवारजनों से पूछा कि क्या कारण था? क्या आपने उस विषय को पार्लियामेंट में उठाया? कभी नहीं, क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी। ये हमारे सरकार के समय दलित अलग, इनके सरकार के समय दलित की राजनीति करना, ये बांटने की राजनीति, ये उचित नहीं है, बड़े नेताओं का लक्षण नहीं है। देश को बनाना है, देश को तोड़ना नहीं है। ये अवसरवादिता की राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं, पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना और सोसाइटी को डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है। जाते जाते मैं एक निवेदन करूंगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने चंद वोट के लिए, कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, हम इस मसले को दलित बनाम गैर दलित ना बनाएं। ये बहुत सुंदर देश है हमारा, हम सब मिलके रहते हैं। कुछ वोटों के लिए हम इस प्रकार से इसे राजनीति में ढकेल दें, ये उचित नहीं है। हां, चाहे हमारे रोहित वेमुला के खुदकुशी का विषय हो, चाहे वो 3 बहनें, जो हमारी बहनें तमिलनाडु में जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी कॉलेज में यातनाओं के कारण, चाहे उनका विषय हो, विमर्श का समय है, विमर्श करना है। कोई भी छात्र कहीं भी ना मरे, कोई भी छात्र कभी परेशानी में ना रहे। छात्र को छात्र रहने दो, उसे जाति और धर्म पे ना बांटो। ये मैं गुजारिश करता हूं सबकी तरफ से कि इस प्रकार की राजनीति शोभा नहीं देता है। रोहित एक बहुत ही समझदार, होनहार एक्टिविस्ट था। उसने अपने सुसाइड नोट में बहुत कुछ लिखा है। हमें उस सुसाइड नोट को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्य उसमें उसने लिखा है। राजनीतिक कारणों से उस चिट्ठी को बदल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये रोहित के प्रति और उसके कॉज के प्रति अन्याय होगा। धन्यवाद।
नहीं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए सवाल पूछा जो उन्होंने अभी कहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का विषय है, उसमें खुद महामहिम राष्ट्रपति, जो कि संविधान के सर्वोच्च धारक हैं, पालक हैं और रक्षक हैं, उन्होंने समस्त विषयों को ध्यान में रखने के पश्चात, पूरे कारणों का अध्ययन करने के पश्चात उसमें अपनी सहमति दी है। और मुझे लगता है महामहिम के सहमति के पश्चात इसमें किसी प्रकार का कोई डिबेटेबल विषय रहता नहीं है। वैसे भी ये पूरी प्रक्रिया अनेकों कोर्ट से होती हुई गुजरी है, तो स्वाभाविक रूप से हमें न्याय प्रक्रिया पर और महामहिम पर अटूट विश्वास है। धन्यवाद।